हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइज आर कीपिंग योर सेल्स एब्सोल्युटली फाइन. So this is Mohit Agarwal here, and yes, the Companies Amendment Act 2020, it got notified yesterday, which means it got notified on 28th of September. Okay, so the Companies Amendment Act 2020 received President's assent on 28th of September 2020. But wait. ये किस टर्म के लिए एप्लीकेबल होगा? Whether it is going to apply for May June 21 or from November December 21? Surely not for November December 20 exams. But let me tell you, the Companies Amendment Act 2020, it has got total 65 amendments in it, and it is going to amend 65 principal sections of the Principal Act, that is the Companies Act 2013. But there is a twist. The twist is that although it has received President's assent on 28th of September, but in India it is still not in force, because Section 1 of it says different dates will be notified for enforcement of different sections. So as of now, the Companies Amendment Act 2020 although received President's assent, but it is still not in force in India, mind you. Okay, and why did this amendment act why was this amendment act brought in? Actually, this amendment act has been brought in to decriminalize various offenses. Decriminalize various offenses का मतलब जेल, imprisonment वगैरह जो है ना, बहुत जगह से हटा दिया गया है. जैसे सेक्शन 8 कंपनी का अगर हम लोग बात करें, वहां पर है ना 3 साल तक का जेल, वो हटा दिया गया है. एक एग्जांपल दे रहे हैं, ऐसा बहुत सारे सेक्शन में जहां जेल था वो हटा दिया गया. तो कोई कंसेप्चुअल अमेंडमेंट्स नहीं है. जो भी अमेंडमेंट्स रहेंगे वो आपका फाइन्स, पेनल्टीज एंड इम्प्रिजनमेंट्स को लेकर के ज्यादातर है. ठीक है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए आया है. एंड द सेकंड रीजन इज डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंसेस. Okay, so these are the two main reasons of this amendment act. Now let me show you this amendment act, boys and girls. Here it is. You can see the Gazette of India, 28th of September 2020. Okay, so it received the assent of the president on 28th of September. The Companies Amendment Act 2020. Okay, and it received the president assent, as you can see, on 28th of September 2020. Did you see this? 28th of September 2020. Okay. उसके पहले लोकसभा में पास हुआ था, राज्यसभा में पास हुआ था, बट एक्ट तो तभी बनता है ना जब प्रेसिडेंट का असेंट मिले. अब इसका सेक्शन 1 देखो. देयर आर टोटल 66 सेक्शंस इन दिस कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020. सर आप तो 65 बोले थे. 65 सेक्शंस के अंदर बदलाव आएंगे आउट ऑफ 470 सेक्शन. अब जो इंटर में रहते हैं, इंटर में अगर हम लोग बात करें तो लगभग 15-20 सेक्शन में ही केवल बदलाव रहेंगे, और वो भी कैसे बदलाव? कंसेप्चुअल बदलाव नहीं. इन इंटर 15-20 सेक्शंस विल गेट अमेंडेड, बट नॉट these are not conceptual amendments. These are amendments which basically relates to decriminalization of offenses and ease of doing business. मतलब जेल वगैरह जो है वो रिमूव हो जाएगा बहुत सारे सेक्शन से. तो अच्छा ही है ना, याद कम करना पड़ेगा. लेकिन वो भी कब एप्लीकेबल होगा? क्या मई जून 21 टर्म के लिए एप्लीकेबल है? आंसर इज अभी तक तो नहीं, क्योंकि अभी तक तो हिंदुस्तान में ही एप्लीकेबल नहीं हुआ है. ये देखिए, इसका सेक्शन 1 देखो, जो शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट को डील करता है. दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020. It shall come into force on such a date as central government may by notification in official gazette appoint. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास ये पावर रहेगा कि वो अलग अलग डेट्स पर, जब उसको उचित लगे, सही समय उसको लगे, वो अलग अलग डेट पर इसके सेक्शंस को नोटिफाई करेगा. तो सारा अमेंडमेंट, पहला बात, एक बार में नहीं आने वाला है. दूसरा बात, standing today it is not in force. Standing today this amendment act is not in force. और फिर यहां पर ये देखो क्या लिखा हुआ है, provided that different dates may be appointed. Different dates may be appointed for different provisions of this act. Okay, so this was an announcement regarding Companies Amendment Act 2020. It is going to be applicable for May June 21. I doubt it.
मई जून 21 के लिए पूरा एप्लीकेबल होगा? आई डाउट इट, आई स्ट्रांगली डाउट इट। तो जैसा आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं वैसा करते रहिए एंड चिंता का तो कोई बात है ही नहीं। अगर एप्लीकेबल हुआ, आपका भाई पूरा अच्छे से अलग से इसके ऊपर एक या दो जितना भी अमेंडमेंट क्लास का दरकार लगेगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 अमेंडमेंट क्लास का दरकार लगेगा, अगर हुआ भी तो वो अलग से हम यूट्यूब चैनल पर अपने लिए आप लोगों के लिए अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहिए। और ये अनाउंसमेंट खाली आपको बताने के लिए था कि कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 जो है वो ऑफिशियल गैजेट में तो छप गया है, बट फिर भी क्योंकि उसको इन्फोर्स करने के लिए डेट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा, तो अभी तक ये इन्फोर्स नहीं है। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, so this was a quick update for you. Make sure that you are sharing this video with all in your WhatsApp group, Telegram group, whatever groups you have. वहां पर आप शेयर करिए ताकि ये लोगों को जो है अवेयरनेस जो है वो हो जाए। चलो बॉयज एंड गर्ल्स, टेक केयर एंड आई एम ऑल्सो टेकिंग गुड केयर ऑफ माई सेल्फ। बाय।